Okay, so we are studying social meanings, and social meanings, as I told you, is the sub category of connotative meanings. Meanings that are based on the different aspects of society. Different aspects of society पे जब meaning depend कर रहे हैं, so we call that social meanings. Meanings that are influenced by the society, different aspects of the society. It means that because of this different social realities, we are defining meanings differently, and we have very clear examples down there. But before that, when people from particular society define language in their way, that is called social meaning. The meanings that we achieve because we are using language in specific aspect of society, and in that specific aspect of the society we are focusing on special types of meaning, and those meanings are called social meanings. When a particular pattern of speech, language variety, speech form is associated with specific social context, stylistic or social meaning is achieved. These meanings are also called as stylistic meaning. ठीक है, how do we achieve these meanings? Because we associate meanings with specific social context, and you know that we use specific language, specific register, specific words in specific patterns of speech. When we are talking to elders, when we are talking to the seniors, when we are talking to the ones whom we respect, we use different vocabulary, we use different tones. और ये सारी की सारी चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, that we use different meanings. If you are using the same word with different tone, you will have different meanings. So in society, in different events of the society, in different social groups, we use language differently, different तरीके से. अच्छा, एक वैरायटी इसमें से क्या हो सकती है? The meaning is based on dialect. Azza warja zawi bilal bil para warja. अच्छा, प्लीज अपने دور دويلة بغير يونيفورم دلاتو دور خبر Dico dal sito classe che venite tutto perché sta come parlava Paudani. Okay, when you enter the conversation, please mute your mobile phones, so others may not get disturbed. Okay, when you enter the meeting, please mute your mobiles. Thank you. Okay, so let's go back to the topic social meanings. Social meanings जो है अब ये change होंगे time के साथ साथ, and you have, like, you see that you are studying history of English literature, and I have been giving you examples from there. You see that same word is having different meanings in different time periods. अगर आप शेक्सपियर के ड्रामास को लें और वहां पे किसी एक स्पेसिफिक वर्ड को उठाएं, तो यू कैन इजीली मार्क दैट हाउ द मीनिंग्स ऑफ दैट वर्ड change during this period of time. Like in 16th century, the same word was used with different meanings, and now we see that we are using the same word in different way, and that is because of the social influence. We see that in different cultures, in different societies, we are using the same word with different meanings. ठीक है, अब टाइम इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स. ठीक है, जब आप देखेंगे ये फर्डिनेंड डिसोसर का ये कॉन्सेप्ट है, डायक्रॉनिक एंड सिंक्रोनिक मीनिंग्स, हमने वहां पे ऐड नहीं किया था जब हम उनकी थ्योरी ऑफ मीनिंग स्टडी कर रहे थे. वी डिडंट डिस्कस दैट पॉइंट, that there are two types of study of two types of studies of language that are
डाइक्रॉनिक एंड सिंक्रोनिक। आप लैंग्वेज को हिस्टोरिकली इवॉल्व होता हुआ भी देख सकते हैं, और विद इन स्पेसिफिक टाइम आप देखते हैं कि एक टाइम पे लैंग्वेज किस तरीके से डिफरेंट तरह से बिहेव करती है। So two ways that are suggested by, that are given by Ferdinand de Saussure बहुत important है, synchronic and diachronic study of language. तो time is one of the important factor that influence language, that influence meaning को change करता है। अच्छा, दूसरा देखें, province का word है। province का एक meaning तो हम अपने जो geographical settings के अंदर इस्तेमाल करते हैं, like we are having 4 or 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, डिफरेंट तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ देखें, प्रोविंस इज ऑल्सो यूज फॉर डिफरेंट एरियाज ऑफ नॉलेज। जैसे आप कहते हैं कि लिटरेचर के अंदर वी हैव स्पेसिफिक वोकेबलरी, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन विच वी आर यूजिंग फिगरेटिव लैंग्वेज, the meanings are different from the language of science and law, ठीक है। अगर आप साइंस के फिजिक्स की लैंग्वेज देखें तो बहुत सारी चीजें, हम ये नहीं कह रहे कि कंप्लीटली डिफरेंट है, बट यू सी दैट दे आर यूजिंग वर्ड्स इन डिफरेंट मीनिंग्स विद डिफरेंट मीनिंग। उनकी सिमिलीज भी अलग हैं, उनके मेटाफर्स भी अलग हैं, उनके वहां पे उस तरह से आयरनी नहीं आएगी जो आपको नजर आएगी ड्रामास के अंदर, जो आपको नॉवल के अंदर नजर आएगी, जो आपको पोइट्री के अंदर मिलेगी। So the language of poetry, the language of literature is different from the language of science, because these are two different branches of knowledge. Knowledge की दो अलग branches हैं। तो आप देखेंगे कि language हर जगह पे एक, it is varying, it is changing, it is dynamic, it's not static, it's unstable. meanings are meanings are not constant, ठीक है, ये चेंज होते रहेंगे। कॉन्सेप्चुअल मीनिंग कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सेम, ठीक है, लेकिन जब हम क्वांटिटेटिव मीनिंग्स पे जाते हैं, ठीक है, जो जिसकी एक टाइप सोशल मीनिंग है, तो वो चेंज होती रहेगी। अच्छा, आप देखें, एक ही रेफरेंट है, रेफरेंट एक ही है, एक बिल्डिंग, उसके लिए वी हैव डिफरेंट वर्ड्स। लाइक आपसे पूछा जाए कि आपका डोमिसाइल कहाँ का है, सो यू नो दैट दिस इज वेरी फॉर्मल टर्म, ठीक है, फॉर्मल टर्म, बहुत ज्यादा फॉर्मल। और आप सबके पास यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स दैट आर यूज्ड इन इंस्टीट्यूशंस फॉर द सेक ऑफ द रेफरेंस ऑफ योर रेजिडेंस, ठीक है। अब ये देखें, ये बहुत ही फॉर्मल वर्ड है डोमिसाइल, सेम उसी जगह को रेफर कर रहा है जो आपका घर है, रेफरेंट इज सेम, ठीक है, आपके घर की तरफ इशारा, आपका घर कहाँ पे है। सो वेरी फॉर्मली वी यूज द वर्ड डोमिसाइल। अच्छा, उससे थोड़ा सा लेस फॉर्मल है रेजिडेंस, ठीक है, फॉर्मल बट लेस फॉर्मल देन डोमिसाइल। अच्छा, फिर एक और एक्सप्रेशन है अबोर्ड, एंड दिस इज पोएटिक वोकैबुलरी। ये वर्ड्स normally we see that these type of words are used in poetry, literature में abode का word use होता है। Normally we do not use the word abode in everyday communication, लेकिन आपके पास we have a word like home। Generally we use the word home for the place where we live, ठीक है, जहां हम रहते हैं वहां के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, होम का वर्ड। या कभी कभी देयर इज अनदर वर्ड दैट इज हाउस, एंड यू नो दैट हाउ हाउस इज डिफरेंट फ्रॉम होम। व्हाई वी डिफरेंशिएट बिटवीन द वर्ड्स होम एंड हाउस, दोनों में क्या फर्क है, कोई आइडिया थोड़ा सा मुझे अगर सजेस्ट कर दें। Their house is the building and home is the in which people live. जी, देखिए, वो भी बिल्डिंग ही है, लेकिन वी एसोसिएट सर्टेन फीलिंग्स विद होम, ठीक है। जो कंफर्ट, हाउस इज द बिल्डिंग, ठीक है। और कभी कभी हम कहते हैं कि जहाँ पे यू आर लिविंग ऑन अ रेंट, और रेंटेड होम के बजाय हम उसको हाउस कह रहे होते हैं, लेकिन हाउस इज अ बिल्डिंग, एंड होम रेफर्स टू द फीलिंग्स दैट यू हैव
with it, with that building. यानी आप उसके साथ how you are associated with that, how you feel comfortable when you are living within, like feeling at home. आप कहीं पे जाते हैं और and you when you say this word that I am feeling at home means मुझे घर जैसा लग रहा है. वो घर का ये मतलब नहीं, the feelings that you have. ठीक है. सो ये जो वर्ड की वेरिएशन आ रही है कि वेरी फॉर्मल में वही रेफरेंट है एंड वी आर यूजिंग डिफरेंट वर्ड. लेस फॉर्मल रेजिडेंस, उससे ज्यादा डिफरेंट कर रहे हैं, होम में आ जाते हैं, हाउस एंड होम. अगर पोएटिक सिचुएशन में आप पोइट्स को देखते हैं, दे आर यूजिंग डिफरेंट वोकेबलरी. ठीक है, फॉर द सेम रेफरेंट. अब हम ये कह रहे हैं कि रेफरेंट एक ही है, लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम उसके लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज कर रहे हैं. ठीक है, डिफरेंट उसके लिए हम जो है डिफरेंट एक्सप्रेशंस लेके आ रहे हैं. अब ये क्यों ये चेंज होता है? अब इसके डिफरेंट टाइम में फर्क आ सकता है. ठीक है, डिफरेंट फील्ड्स ऑफ नॉलेज हैं, उसकी वजह से हो सकता है. अच्छा देखें, आपका जो स्टेटस है, स्टेटस ये भी चेंज करता है लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स को. ठीक है, यू सी दैट automatically when you're using language with different people in different situations, your choice of word, your diction is different. ठीक है. स्टेटस के बच्चों से बात करते हैं आप, यू यूज डिफरेंट वोकेबलरी. व्हेन यू टॉक टू योर एल्डर्स, बड़ों के साथ, वालिद साहब के साथ बात करते हैं, योर चॉइस ऑफ वर्ड, योर डिक्शन इज डिफरेंट. ठीक है. अब देखें, चॉइस ऑफ वर्ड एंड डिक्शन. डिक्शन इज मोर लिटररी वर्ड देन चॉइस ऑफ वर्ड्स. आपकी जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड है वो डिफरेंट हो जाती है. एंड व्हेन यू आर इन द गैदरिंग ऑफ योर फ्रेंड्स, you often use very informal language. स्लैंग्स आ जाते हैं. ठीक है, आपकी लैंग्वेज में इस तरह के एक्सप्रेशन आ जाते हैं दैट यू डू नॉट यूज विद योर एल्डर्स. ठीक है, इस तरह के टर्म्स आप यूज कर रहे हैं. अच्छा, फॉर डिफरेंट मोडालिटीज वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोकेबलरी, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. ठीक है, कि जब आप ऑफिशियल, आपके पास बहुत सिंपल एग्जांपल है, लाइक व्हेन यू आर राइटिंग ए फॉर्मल लेटर, you have different structure, you have different vocabulary. In the same way, when you are writing informal letter, your diction, your choice of words, your pattern of sentences, they are different. Meanings that you are associating with those words, simple words, are different. ठीक है, आपकी मोडालिटीज फर्क हो जाती हैं. यू आर यूजिंग डिफरेंट मोड्स, डिफरेंट तरीके इस्तेमाल कर रहे होते हैं. फिर लास्ट में जो चीज है, दैट इज दैट एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर इंडिविजुअल. फॉर दिस रीजन वी से दैट ऑल ऑफ अस आर हैविंग डिफरेंट स्टाइल्स. अच्छा, अब क्योंकि हमारे स्टाइल जो कॉमन पीपल हैं, वी आर यूजिंग लैंग्वेज बट आवर स्टाइल्स आर नॉट वेल डिफाइंड. वी आर ऑफन इमिटेटिंग अदर्स, हम औरों को कॉपी कर रहे होते हैं. बट वी सी that renowned writers, well-known writers, they have their singular style of writing. उनका एक अलग सा एक स्टाइल होता है जो दूसरों के अंदर आपको आप एकदम से रिकग्नाइज कर लेते हैं कि ये जो मेटाफर्स हैं, ये जो सिमिलीज हैं, ये जो पैटर्न्स हैं, ये तो फलाने शायर की, फलाने पोइट की शायरी में हमें नजर आता है. दैट इज सिंगुलर. We normally, all human beings are having singular style. Singularity है हमारा, we have individual styles. लेकिन जब आप देखते हैं कि बड़े राइटर, बड़े जो आपके जितने भी वेल नोन पर्सनालिटीज हैं, उनके उनके जो लैंग्वेज का स्टाइल है, दैट इज डिफरेंट. ठीक है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन की बात नहीं कर रहा, द वे दे आर यूजिंग एक्सप्रेशंस वो भी डिफरेंट है. जी, यहां तक आप लोग मेरे साथ हैं? Yes, sir. Okay, so we have studied conceptual meaning, Connotative meaning and social quantitative meaning. meaning and social meaning. ठीक है, मेन जो डिफरेंस है वो दो के दरमियान करना है. और फिर ये जो नीचे टाइप्स हैं, दीज आर द सब टाइप्स ऑफ कॉनोटेटिव मीनिंग्स. पहली टाइप क्या है? द फर्स्ट टाइप इज Status. Conceptual. conceptual meaning. Thank Conceptual you. meanings.
जी, कंसेप्चुअल मीनिंग किस तरह होते हैं? स्टेटिक होते हैं, ठीक है, ये डिक्शनरी मीनिंग Same for है। everyone. जी, सेम। A dictionary meaning. जी, लिटरल मीनिंग है, Literal meaning, core. कोर सेंस है, Actually, yeah, basic. बेसिक मीनिंग। व्हाई डू वी कॉल देम बेसिक मीनिंग्स? एक्चुअली बुनियादी तौर पर जो वर्ड एसोसिएट किया वो होता है उस मीनिंग के साथ, इसी वजह से हम जी, क्योंकि बिल्कुल दिस इज द कोर सेंस दैट वी एसोसिएट विद दैट सिंबल, दैट वर्ड, and all other meanings are attached to the core sense। जो core sense है, the central idea, the central concept that we associate with a word, वो central idea आपका conceptual meaning है, और जितने और meaning उसके साथ जोड़ेंगे वो उसके connotative meaning है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि somehow conceptual meanings are static, whereas connotative meanings are unstatic, unstable, varying, changing, consistently बदलते रहते हैं, वो एक जैसे नहीं रहते, हमेशा बदल। अब उसमें से एक चीज़ जो हमने पढ़ी है कि जिसकी वजह से मीनिंग चेंज हो सकते हैं, दैट इज सोशल मीनिंग, यानी सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं मीनिंग को इन्फ्लुएंस करेंगे। इन्फ्लुएंस मीन उसके अंदर वेरिएशन लेके आएंगे, उसके अंदर चेंज लेके आएंगे। अच्छा, अब हमने सोसाइटी के डिफरेंट फैक्टर्स को देखा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मीनिंग को चेंज कर रहे होते हैं? जी, एनी आइडिया? What are the different social factors that influence meanings? जी Deep Setting करती है, like formal or informal. जी, शाबाश। अगर वन बाय वन करते जाएं, पहले जो है अरशद बता दे। स्टेटस, स्टेटस, शाबाश। इब्राहिम फॉर्म बता दे। इसके अलावा कल्चर। इब्राहिम बता दे। अभी जो सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, मुझे पूरा आइडिया नहीं है ओके क्या रहा है ओके ओके, आपके डिस्कशन का क्या हुआ। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। महानूर बता दे बेटा। सर हमारी सेटिंग पे भी डिपेंड करता है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, फ्रेंड्स के साथ है, या फिर छोटे बच्चों के साथ है, एल्डर्स के साथ है। ठीक है, सो योर स्टेटस। ठीक है, असद बता दे। सर जी पोजीशन को अगर हम पोजीशन चेंज करें, फॉर एग्जांपल वो टीचर है तो हम टीचर की नजर, अगर वो नर्स है तो नर्स, ये सर पोजीशन। जी जी, स्टेटस के हिसाब से अकॉर्डिंगली। अच्छा, फिर डिफरेंट नॉलेज के डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जैसे हमने कहा था लॉ, साइंस। साइंस के अंदर फिजिक्स वाले अलग अब जैसे आपको बायोलॉजी के अंदर मॉर्फोलॉजी का वर्ड मिल जाएगा, लेकिन वो फिर इस चीज़ के नहीं, वो अपने जितने भी जो उनके पास एनिमल्स हैं और उनके स्ट्रक्चर्स को देख रहे होते हैं, तो वो उनकी मॉर्फोलॉजी है। और हम जब लिंग्विस्टिक्स में मॉर्फोलॉजी को यूज करते हैं, वी आर लिंकिंग इट टू द स्ट्रक्चर्स ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप देख रहे हैं, सेम वर्ड है, इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज दे आर हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स, उनके मीनिंग चेंज होते जाएंगे। अच्छा, ये देखिए यहां पे हमने टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है। मीनिंग्स आर टेम्पोरल, मीनिंग्स, लैंग्वेज इज टेम्पोरल। डिफरेंट स्केल्स पे आप देखते हैं तो मीनिंग वेरी कर रहे होते हैं। अच्छा, कैसे चेंज हो रहे होते हैं? जैसे लैंग्वेज इन इन द टाइम ऑफ शेक्सपियर, इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, दैट वाज डिफरेंट। इवन इफ यू गो बैक टू द मिडल एजेस, अगर आप चौसर की इंग्लिश को देखें या उससे पहले बियोवुल्फ की इंग्लिश देखें, दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट। ओल्ड इंग्लिश, इवन मिडल इंग्लिश, बहुत मुश्किल, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंट स्पेलिंग, डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट। And we see that the same word is having different meanings in past। ये आगे हमारा एक टॉपिक है जिसमें देखेंगे कुछ वर्ड्स को कि कैसे उनके मीनिंग चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो टाइम इज वन ऑफ द फैक्टर्स, सोशल फैक्टर है। सोसाइटी के अंदर डिफरेंट टाइम्स में लैंग्वेज डिफरेंट तरीके से आपको मीनिंग देगी, डिफरेंट फील्ड्स ऑफ नॉलेज। इसी तरीके से स्टेटस
आपको मीनिंग को चेंज करता है, ठीक है, उसकी डिमांड डिफरेंट है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, चॉइस ऑफ वर्ड चेंज हो जाता है। इन डिफरेंट सेटिंग्स वी यूज डिफरेंट लैंग्वेज। अच्छा, डिफरेंट मोडालिटीज, यानी अगर आप लेटर लिख रहे हैं, अगर आप मिनट्स लिख रहे हैं, अगर आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपके आपके पैटर्न्स डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। यू विल यूज डिफरेंट लैंग्वेज, यू यूज डिफरेंट पैटर्न्स, you arrange your language in different ways, and within that you are using words with different meanings, जो उस तरह से नहीं होते जो कि आम मोड्स के अंदर होते हैं। और लास्ट हमने इसमें देखा सोशल मीनिंग के अंदर कि हर इंडिविजुअल, बिकॉज वी आर हैविंग पर्सनल, इंडिविजुअल, सिंगुलर वे ऑफ हैंडलिंग एंड यूजिंग मीनिंग्स, जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया है। हर एक बंदे के पास अलग स्टाइल है, अल्लाह ने उसको अलग अलग बनाया है, और हर इंडिविजुअल, यही सबसे खूबसूरती है, दैट वी आर नॉट सेम, all individuals are different and they have singular individual independent style। उनका एक अलग अंदाज है। ये अल्लाह की तख्लीक का सबसे बड़ा कमाल है कि कोई एक शख्स दूसरे शख्स के साथ 100% एक जैसा नहीं है। इवन ट्विन्स आर नॉट सेम, ठीक है। आपको बहुत सी चीज़ें उनकी सेम लगेंगी बट दे आर नॉट एग्जैक्ट कॉपीज, ठीक है। देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर डिफरेंट। तो यहाँ पे हम इसको स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे। अरशद, Yes, sir. प्लीज़, वी हैव 28 पार्टिसिपेंट्स इन टुडेज मीटिंग, तो अगर आप इनकी एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, मैंने अवेश अच्छा, अवेस है, अवेस इज प्रेजेंट, ठीक है, इट्स ओके। ओके ओके, प्लीज शेयर दैट विद मी, ओके। Excuse me. जी बेटा। ټول سر دی رمې خراب کړه چې ځان ته Oh, recording in progress. The recording shook.